Hello student, Hemant Sir is here. So today we are going to understand the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem is also called as the Thales theorem. Okay, so now we will understand the basic proportionality theorem. The statement of basic proportionality theorem is a line parallel to the side of the triangle. See, this is the triangle A, B and C, and the line PQ is parallel to the line BC of the triangle ABC. Okay, so we are talking about this side, which is the one of the side which is parallel to the PQ of the triangle. Okay, intersect the remaining sides. So we are talking about these two sides, side AB and side AC. It is intersecting this other two sides into two distinct points, that is P and Q. Okay, two distinct points P and Q. Then the line divides the sides. That means this parallel line divides these both sides into the same ratio or same proportion. That means we have to prove that AP divided by BP equals to AQ divided by QC. That is AP divided by BP equals to AQ divided by QC. Okay, so that we have to prove. Okay, so now we have to write first given part. Okay, so given, what is given? The given that the line PQ is parallel to line BC. So side BC is parallel to side PQ. Okay, and this line intersects, this PQ line or this line intersects side AB and AC on two distinct points called P and Q. Okay, and line intersect side AB on PQ and side AC on point Q, that is P and it is on Q. Okay, so this is given, and we have to prove. After given we have to write proof. So to prove, so what we have to prove? AP divided by BP equals to AQ divided by CQ. Okay, that we have to prove. Now we have to construct. So construction. We have to construct this point B and Q, that is here, and we have to construct or the join the point P and C. Okay, this P and C, and we have to draw perpendicular from point P to side AQ. So this is perpendicular, and from here this is perpendicular. Okay, so इनका नेम दे दीजिए आप M and N. हमने नाम दे दिया M and N. It is little different from which is given in your textbook. Okay, ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है because to understand easily, because book में जो दिया हुआ है बहुत short में दिया हुआ है. Okay, but we have to prove step by step everything in basic proportionality theorem. Okay, so first we have to take triangle APQ and triangle PQB. This triangle and this triangle. Okay, so construction, what we have construct? Join the point BQ
join PC and QB and draw QM perpendicular on side AP and draw PN perpendicular on side AQ. That means हमने यहाँ पर भी perpendicular ड्रॉ किया है एंड यहाँ पर भी perpendicular ड्रॉ किया है. Okay, so now we are talking about this triangle AQP, this triangle and this triangle. Okay, जिसको मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया है, that triangle we have to use first. Okay, so now to prove. Okay, so in triangle APQ, in triangle APQ में हमने ले लिया बेस AP. बेस क्या हो गया? इन ट्राइंगल APQ बेस को हमने ले लिया B1. हम फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें तो हमने इसको ले लिया B1. तो क्या हो जाएगा B1? दैट इज बेस हो जाएगा AP. क्या हो जाएगा? AP एंड हाइट को हमने ले लिया H1. हाइट क्या हो जाएगी? जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द हाइट. सो QM विल बी द हाइट. सो हमने ले लिया QM. ओके, एंड फॉर ट्राइंगल PQB, इन ट्राइंगल PQB, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं PQB की. ओके, सो बेस हमने ले लिया PB. सो हमने इसको ले लिया B2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसके लिए? ये हो जाएगा PB इज द बेस. PB इज द बेस एंड हाइट दैट इज H2. हाइट क्या हो जाएगी? सी. ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा का है, दैट इज ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल का, ये कैसा है? 90 डिग्री से ज्यादा है. दैट इज ये ट्राइंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है. तो इसके हाइट हम कैसे कंसीडर करते हैं? सो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वाले लाइन के ऊपर. सो ये जो हाइट है ना, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी उसकी हाइट. सो फॉर दिस ट्राइंगल ये वाला जो M है QM विल बी द हाइट. सो H2 यानी हमारी हाइट क्या हो जाएगी? QM. सो हाइट क्या हो जाएगी? QM. ओके, अब हम दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे. ओके, सो रेशियो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय ट्राइंगल PQB इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर हाइट QM और यहां पर भी हाइट क्या है? QM है. अब जब दोनों की हाइट सेम है तो इनका एरिया का रेशो इनके बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा. ओके, सो ये लिखने के बाद हम उसका स्टेटमेंट भी लिखना है हमको. ओके, सो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोथ द ट्राइंगल हैविंग और ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव सेम हाइट. अब दोनों की हाइट सेम है, सो क्या होता है? इनके एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाता है. ओके, सो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ इनकी हाइट कैसी है? सेम है, देन
then the ratio of area of both triangle will be equals to ratio of their corresponding base. Therefore क्या हो जाएगा, अब रेशियो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल्स टू, अब हमने क्या लिखा है, इनका जो रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग बेस के, दैट इज हो जाएगा B1 डिवाइड बाय हो जाएगा B2. सो B1 क्या है, AP, क्या हो जाएगा AP डिवाइड बाय B2 क्या है, PB, क्या है PB. ओके, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको इरेज कर दिया. अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे. नेक्स्ट टर्म में अगेन ट्राइंगल ये वाला सेम लेंगे APQ, बट सेकंड वाला जो ट्राइंगल है वो चेंज जाएगा. हम लेंगे अब QPC, ये वाला ट्राइंगल लेंगे. इसके साथ में अब हम लेंगे इसको. नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, APQ की बात कर रहे हैं, APQ. अब हमने इसको बेस ले लिया, AQ क्या हो जाएगा, बेस. सो इन ट्राइंगल APQ बेस क्या हो जाएगा, बेस अगेन हमने ले लिया B1. सो B1 क्या हो जाएगा, AQ, क्या हो जाएगा AQ, एंड H1 दैट इज हाइट. हाइट क्या हो जाएगी, ये वाले हो जाएगी, ये वाले. देखो इस साइड पर परपेंडिकुलर क्या है, PN. सो PN विल बी हाइट, हमने लिख लिया PN. एंड इन ट्राइंगल, हम नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल, PQC की. हमने लिख लिया PQC. हमने इसका बेस को ले लिया B2, हमने बेस ले लिया QC को. तो क्या हो जाएगा, B2 इक्वल्स हो जाएगा QC एंड H2 दैट इज हाइट. हाइट क्या हो जाएगी, अगेन ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है. तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इसको लाइन को हम आगे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PN. सो PN विल बी द हाइट. सो PN क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी. नेक्स्ट ओके, अब देखो अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं हाइट यहाँ पर इसकी भी PN है और दूसरे भी ट्राइंगल की हाइट क्या PN है, मींस यहाँ पर अगेन हाइट क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी. सो दिस स्टेटमेंट अगेन हमको रिपीट लिखना पड़ेगा. ओके, सो इन ट्राइंगल APQ एंड इन ट्राइंगल PQC क्या हो जाएगा, हाइट इज इन ट्राइंगल APB एंड PQC have same height. अब दोनों की सेम हाइट है, सो क्या हो जाएगा, अगेन इनके एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग बेस के. सो have same height, then the ratio of area of both triangle will be equals to ratio of their corresponding base. Ratio of their
करस्पॉन्डिंग बेस। देयरफॉर देखो इनकी अगर हाइट सेम है तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग बेस के बराबर। ओके, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, हम इसी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PQC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन B1 डिवाइड बाय B2। सो B1 क्या है, B1 है यहाँ AQ, क्या है AQ डिवाइड बाय B2 क्या है, B2 है QC, हमने लिख लिया यहाँ पर QC, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट टर्म, अब हमने देखो यहाँ पर ऊपर में जो ट्राइंगल दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है, APQ, एंड हियर अगेन वी हैव APQ, दैट मींस हमको नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसको इक्वल करना पड़ेगा। जब अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया दैट मींस इनकी जो साइड्स के रेशियो है वो भी इक्वल में आ जाएंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल PQB एंड PQC, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला नेक्स्ट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो दोनों के लिए PQ जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। अब सपोज हमने इसको ले लिया कॉमन साइड है, और अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हुए हैं, दैट मींस इनके लिए जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो हाइट भी सेम और इसको हमने ले लिया बेस भी सेम। जब हाइट और बेस अगर सेम है तो दोनों का जो रेशो, एरिया का जो रेशो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टर्म, नाउ इन ट्राइंगल PQB एंड इन ट्राइंगल PQ कॉमन साइड है, PQ इज कॉमन बेस, हमने ले लिया PQ क्या है, कॉमन बेस है, एंड बोथ द ट्राइंगल आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट मींस इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, एंड बोथ ट्राइंगल्स are in two parallel lines, that means इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। therefore they have same height। सो दोनों ट्राइंगल की अगर हाइट और बेस सेम है तो इनके एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हेंस, हम लिखेंगे हेंस दे हैव सेम एरिया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is equals to area of triangle PQC। अब दोनों जब सेम है, अब हमने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, सेम है, एंड नीचे वाला पोर्शन PQB और यहाँ पर है PQC, बट हमने थर्ड इक्वेशन में दोनों को इक्वल प्रूव कर लिया। दैट मींस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम क्या लिख सकते हैं, AQ डिवाइड बाय QC इक्वल्स टू AP डिवाइड बाय PB हम लिख सकते हैं। सो वे टू राइट, सो therefore by equation 1, 2 and 3 क्या लिख सकते हैं, AP डिवाइड बाय PB
AP डिवाइड बाय PB इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाय QC, AQ डिवाइड बाय QC। और हमको यही प्रूफ करना था AP डिवाइड बाय BP, AP डिवाइड बाय BP या PB लिखो एक ही बात है, इज इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाय QC, AQ डिवाइड बाय QC। ओके, सो यही हमको प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, so this is all about the basic proportionality theorem. Okay, so write down this part. सो आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। ओके, सो दिस थ्योरम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे इसका दूसरा पार्ट, दैट इज ये हो गया बीपीटी। अब हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। ओके, इसका जस्ट अपोजिट। अब कन्वर्स में क्या होता है, जो हमको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है और यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमको यहाँ पर जो प्रूफ वाला पार्ट है वो गिवन में रहेगा और गिवन वाला पार्ट हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, सो बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, बट इट इज रियली वेरी इजी एंड स्टेप बाय स्टेप हमने आपको क्लियर करके दिया हुआ है। Okay, so this is really very important guys and write down precisely। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए बाय।